Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Hagar Parshala. Students, we are doing organic chemistry, and in that we are doing some basic principles and techniques of class 11th, and this is lecture 8th. बच्चों, आज का हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, एंड इन दिस वी विल डिस्कस टुडे द नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, nomenclature of nitrites, and then nomenclature of nitriles, and at last nomenclature of isonitriles. Students, this lecture is continued from the lecture 7th. So students, let's start with the nomenclature of esters. बच्चों, जनरल फॉर्मूला जो है आपका एस्टर का दैट इज RC++OR, जहां आपका जो R है बेटा दैट इज आइदर H और एनी एल्काइल ग्रुप, एंड द फंक्शनल ग्रुप हियर इज C++OOR', एंड दिस इज RC++OOR', दैट इज एस्टर बेटा. नाउ यहां मैंने दो एल्काइल ग्रुप्स हैं बेटा, और यहां इन दोनों एल्काइल ग्रुप्स को मैंने डिफरेंशिएट किया है R और R' से बेटा. नाउ बच्चों, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है दैट इज एल्काइल. नाउ जो एल्काइल ग्रुप जो बेटा एज अ प्रीफिक्स आप लिखते हैं दैट इज दिस R' हियर विच इज अटैच्ड टू दिस ऑक्शन, एंड सेकेंडरी सफिक्स इज OH. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक सम कॉमन नेम्स ऑफ द एस्टर्स. लेट्स से दिस इज HCOOCH3. बच्चों, दिस इज मिथाइल फॉर्मेट. Actually beta, this alkyl group is taken as a prefix, and whatever is the corresponding acid of this one, उसका जो इक है बेटा उसको हम रिमूव करते हैं और ऐड करते हैं बेटा 8. Now we drop the ic acid with 8 बेटा, that's why it's a methyl formate, क्योंकि आपका इसका corresponding acid क्या रहेगा बेटा आपका फॉर्मिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड से क्या हो गया फॉर्मेट. So this is methyl formate. Now students, this is ethyl formate. Again, primary prefix here is ethyl because ethyl group is here, clear? And formic acid से क्या हो गया बेटा formate. एक एसिड हमने हटाया और 8 suffix लगाया बेटा, and now it's so ethyl formate. उसी तरह बेटा this is methyl acetate because acetic acid का जो आपके एक एसिड है बेटा उसको हमने ड्रॉप किया और 8 सफिक्स लगाया बेटा, एंड नाउ दिस इज मिथाइल एसीटेट. उसी तरह ये भी बेटा आपका इथाइल एसीटेट. नाउ दिस इथाइल इज टेकन एज द प्रीफिक्स, तो दिस इथाइल एसीटेट. नाउ बेटा IUPAC नेम्स ऑफ द एस्टर्स. नाउ लेट्स से दिस अगेन HCOOCH3. इट्स your methyl is taken as the prefix beta, and then number of carbon atoms is represented by word root, and that is having your one carbon here. Then word root is your meth, और आपका एन जो है that is a primary suffix, और आपका secondary suffix is OH. Now this is a methyl methanoate beta. So E जो है we have to drop this E beta. Now here we have to drop this E because next O is also your vowel, so दो vowel इकट्ठे नहीं हो सकते बेटा, so we have to remove this E of this N, so that's why it's so methyl methanoate. Now next is your same beta, this is methyl methanoate. Now here, now this is ethyl which we have to write as a prefix, and since there is one carbon then it's a meth, then plus N beta, and then plus OH, that is a secondary suffix. Now this is ethyl methanoate. Then next is this methyl here, methyl, and there are the 2 carbon atoms. So this eth
plus N plus OH beta, then this is methyl ethanoate. Then next is this ethyl here that we have to write as the prefix. Now this is having your 2 carbon atoms here, then word root is eth, then plus N plus OH beta, then it's ethyl ethanoate. Then next is your nomenclature of acid amides. बच्चों फंक्शन ग्रुप जो है अमाइड्स का दैट इज CONH2 एंड द जनरल फॉर्मूला इज RCONH2. और बच्चों जो आपका कॉमन नेम हम इन अमाइड्स का लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है, क्लियर, उसका जो इक एसिड है बी रिप्लेस दैट इक एसिड बाय योर अमाइड. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज एसिटिक एसिड इज देयर. एसिटिक एसिड का ये जो आपका इक एसिड है बेटा, इसको हमने अगर ड्रॉप किया और उसमें अमाइड फिक्स लगाया देन इट विल बी एसिटामाइड. और यहां जो आपका ये R है बेटा दैट कैन बी आइदर H और एनी एल्काइल ग्रुप. और बच्चों जो IUPAC नेम लिखते हैं जब हम इसका, देन वी यूज द सफिक्स अमाइड. सो लेट्स से दिस RCONH2, then its general IUPAC name will be alkanamide, and this is alkane minus E plus amide, that's why it is alkanamide. अब बेटा E क्यों रिमूव किया? क्योंकि E से बाद क्या है आपका बेटा जो सेकेंडरी सफिक्स है उसमें दैट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द vowel A, that's why we have to drop this E from this alkane beta. So that's why the general IUPAC name of amides is alkanamide. Now beta let's take the examples of some amides. So this is some amide beta HCONH2 having only 1 carbon atom. So beta corresponding carboxylic acid जो रहेगा इसका दैट इज फॉर्मिक एसिड, उसका अगर हम एक एसिड बेटा रिप्लेस करें अमाइड से देन दैट विल बी फॉर्मामाइड. एंड इट्स IUPAC नेम इज मिथ प्लस N प्लस अमाइड बेटा. मिथ क्यों? बिकॉज ओनली 1 कार्बन इज देयर, प्लस N प्लस अमाइड, रिमूव दिस E बेटा देन इट विल बी मिथेनामाइड. देन दिस इज हैविंग 2 कार्बन एटम्स ओवर हियर. सो बेटा इसका जो कॉमन नेम रहेगा दैट इज एसिटिक एसिड का एक एसिड रिमूव किया, अमाइड सफिक्स यूज किया बेटा, देन दैट इज एसिटामाइड. और इसका जो बेटा IUPAC नेम रहेगा 2 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट क्या रहेगा? एथ प्लस N प्लस अमाइड बेटा, देन इट्स इथेनामाइड. देन दिस इज हैविंग 3 कार्बन एटम्स तो प्रोपियोनिक एसिड का एक एसिड रिप्लेस किया बेटा, अमाइड फिक्स यूज किया बेटा, देन दिस इज प्रोपियोनामाइड. देन इट्स IUPAC नेम विल बी ऑफ this is having your 3 carbon atoms beta, so prop is the word root for this, so prop plus N plus amide, that is your propanamide. Then next is your beta nomenclature of ether. बच्चों ether का जो functional group है that is your divalent oxygen, and on either side of this oxygen we are having the alkyl groups beta, or मे बी अल्काइल और अराइल ग्रुप्स. और जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें बेटा दैट इज ROR. नाउ बच्चों जो IUPAC नेम जब हम इसके लिखते हैं दैट इज एल्कोक्सी एल्केन, और कॉमन नेम जो हम इसका लिखते हैं बेटा दैट इज एल्काइल एल्काइल ईथर. अगर हमारे पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं यहां देन वी राइट देम अल्फाबेटिकली, और अगर सेम एल्काइल ग्रुप्स हैं देन वी यूज द वर्ड डाई, like dialkyl ether, whatever it is beta, where this R is the alkyl group. Now bachcho let's take some ethers and let's write some common names and then IUPAC names. Now beta this is a CH3OCH3. Now on either side of this oxygen we have 2 methyl groups. So common name of this ether will be dimethyl ether beta, and IUPAC name will be methoxymethane. Now
on both sides beta both the alkyl groups they are having the same number of carbon atoms, so एक आपका बेटा ऑक्सीजन एक के साथ चला जाएगा, then that will be a methoxy and other will be the part of the alkane beta, that is a methane over here, then it's your methoxy methane. Then next is CH3 CH2O CH3 beta, its common name will be a ethyl methyl ether. So beta we have arranged these alkyl groups alphabetically. E comes before M. That's why it's your ethyl methyl ether. And then its IUPAC name will be methoxyethane. Now larger alkyl group we have taken as alkane beta. Clear? Now the alkyl group having less number of carbon atom is taken as alkoxy. So this is methoxy here, then it's this ethane. So it's methoxyethane beta. Now next is CH3 CH2 CH2O CH2 CH3. Then it's ethyl and propyl beta. So it's ethyl propyl ether. Clear? Now its IUPAC name will be beta this ethoxy propane. Now this is your CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 beta. Now this is same as that of this one. This is again ethyl propyl ether and its IUPAC name is same again, that is ethoxy propane. इस चीज को मैंने इसीलिए लिया बेटा ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि एल्केन किसको ले रहे हैं और अल्काइल ग्रुप किसको ले रहे हैं। तो इन दोनों से ये क्लियर हो जाता है कि एल्कोक्सी में हम उस एल्काइल ग्रुप को ले रहे हैं जिसमें कम कार्बन एटम्स हैं और एल्केन में उस एल्काइल ग्रुप को ले रहे हैं जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स हैं। सो देन नेक्स्ट इज योर CH3 CH2 CH2O CH3. This is your methyl propyl ether beta and methoxy propane is the IUPAC name. Hope students this is clear. Now बच्चों nomenclature of the primary amines. बच्चों there are the different amines. Primary amines रहते हैं, secondary amines रहते हैं and tertiary amine रहते हैं. So इनका हम नेमिंग वन बाई वन डिस्कस करेंगे. So let's take first the nomenclature of primary amines. बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है अमाइंस का दैट इज NH2 एंड जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2n plus 1 NH2. It means one of the hydrogen atom of the alkane is replaced by NH2, that is a amine group beta. So where N is the number of carbon atoms, that may be 1 2 3 and so on. और बेटा CnH2n plus 1 क्या हुआ, यहां R हुआ. सो आपका जो जनरल फॉर्मूला रहेगा बेटा आपका प्राइमरी अमाइंस का दैट इज RnH2 एंड सफिक्स विल बी योर अमाइन. और जो कॉमन नेम जब हम लिखते हैं बेटा प्राइमरी अमाइंस का तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट ऐड द वर्ड अमाइन आफ्टर द एल्काइल ग्रुप बेटा. और बेटा जैसे बेटा एल्काइल प्लस अमाइन दैट इज एल्काइल अमाइन. और बेटा इसको हम एज अ प्रीफिक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स क्या रहेगा, अमीनो. सो अमीनो एल्केन दैट इज ऑल्सो योर कॉमन नेम. सो प्राइमरी अमाइंस या अमाइंस के जो हम कॉमन नेम्स हैं बेटा दो तरह से लिख सकते हैं, एज एल्काइल अमाइन और एज अमीनो एल्केन. लेकिन IUPAC नेम जो रहेगा बेटा दैट विल बी जस्ट एल्केन का ई रिमूव करेंगे और अमाइन सफिक्स यूज करेंगे बेटा, दैट विल बी योर एल्केना माइन. और ये ई क्यों ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, बिकॉज नेक्स्ट ए इज देयर दैट इज अ वावल, सो वी हैव टू ड्रॉप दिस ई ऑफ एल्केन. देन कॉमन IUPAC नेम जो रहेंगे बेटा दैट विल बी योर एल्केना माइन. और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे मे बी मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, whatever it is. So we'll discuss one by one. So now next is on nomenclature of amines. बच्चों जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n plus 1 NH2 और suffix is your amine. So let's take some amines beta. Let's say this was CH3NH2. This is the first member of your this primary amine beta. तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा, since it is having a one carbon atom, then its word root is a meth, then primary suffix is
ane, then secondary suffix is your amine beta. So drop this e, add amine, so we'll get methanamine. Then next is your eth plus ane plus amine beta, then that is your ethanamine. Then next is your 1, 2, 3 carbon atoms are there, or word root for 3 carbon atom is the prop, and then primary suffix is ane because single bond is there between the carbon atoms, and then add amine, then it will be your propanamine. Then beta next is your 1, 2, 3, 4. But is the word root, so it's your but plus ane plus amine. Drop this e, then it is your butanamine. Now this is your pentanamine. Hope students this is clear. Now let's take the case of secondary amines. Secondary amines क्या रहते हैं बेटा, जिसमें क्या है, दो alkyl groups हैं which are attached to this nitrogen beta, so it's so R2NH. Then its functional group is your NH, और इस N के साथ दो alkyl groups attached हैं, that is also said to be your imino group. Now secondary prefix is your N-alkyl and suffix is your amine. Rather secondary suffix is your amine बेटा. और कॉमन नेम हम लिखेंगे बेटा इनका, वो किस तरह लिखेंगे, अब यहां बेटा कॉमन नेम जब लिखेंगे देयर आर द टू एल्काइल ग्रुप्स. क्लियर, एल्काइल ग्रुप के साथ हम सिंपली अमाइन सफिक्स यूज करेंगे, लेकिन इन एल्काइल ग्रुप्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. क्लियर, सो नेम द एल्काइल ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर एंड देन वी हैव टू ऐड द वर्ड अमाइन. बट बेटा जब आपके एल्काइल ग्रुप सेम हो then we use the numerical prefix di before the alkyl group. और एग्जाम्पल से ये बेटा ज्यादा क्लियर होगा आपको. एंड देयर इज द अदर वे ऑल्सो टू राइट द कॉमन नेम ऑफ द सेकेंडरी अमाइंस बेटा. वो क्या है, वी जस्ट एड द प्रीफिक्स एन एल्काइल बिफोर द अमीनो एल्केन बेटा. क्लियर, और जो बेटा आपका लार्जर ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा इन दोनों में से, is that clear, that will form the part of alkane beta. Or IUPAC name में simply we just write one alkyl as the prefix beta and larger alkyl group we take as the alkanamine beta. So suffix is your amine that is there, that's why it's so alkanamine beta. और common IUPAC name जो रहेगा that is your N-alkyl alkanamine. और एल्काइल ये वाला ग्रुप कौन सा रहेगा बेटा, विच इज रिटन एज द प्रीफिक्स विच इज हैविंग योर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. और ये जो एल्केन वाला एल्काइल ग्रुप जो है बेटा, दैट इज हैविंग योर लार्ज नंबर ऑफ योर या मोर नंबर ऑफ योर कार्बन एटम्स. सो दैट्स योर एन एल्काइल एल्केनामाइन बेटा. नाउ बेटा लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू नेम द सेकेंडरी अमाइंस. तो जनरल फॉर्मूला जैसे अभी बताया, दैट इज आर एन एच आर बेटा. सेकेंडरी सफिक्स जो है दैट इज अमाइन हियर, सो दिस इज CH3NH3. क्लियर, इट्स कॉमन नेम इज डाइमिथाइल अमाइन बेटा. और बच्चों इसी का कॉमन नेम हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स लेंगे. क्लियर, दैट इज एन मिथाइल हियर एंड देन अमीनो मिथेन बेटा. सो दिस N-methyl amino methane. और इसका जो IUPAC नेम रहेगा दैट इज N-methyl methanamine. सो दैट इज IUPAC नेम बेटा. और ये जो N कैपिटल N है ये क्या है, दैट इज शोइंग द नाइट्रोजन एटम. मीन्स दिस alkyl group that is methyl groups, they are attached to this nitrogen atom. So this is N over here. Now बेटा this was CH3 CH2 NHCH3. Now बच्चों इसका जो कॉमन नेम रहेगा दैट इज इथाइल मिथाइल अमाइन. क्लियर, अल्फाबेटिकली हमने इन एल्काइल ग्रुप्स को लिया बेटा. E comes before M बेटा, दैट्स व्हाई इट्स योर इथाइल मिथाइल अमाइन. इथाइल क्यों, क्योंकि दो कार्बन एटम्स हैं, इथ और YL लगा, इथाइल बेटा. और दिस मिथाइल देन योर अमाइन. और दूसरी तरह से बेटा इसको एज अ अल्केन लेंगे हम, और इसको एज अ प्रीफिक्स लेंगे बिकॉज दिस इज हैविंग योर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो दिस इज योर
एन मिथाइल अमीनो इथेन बेटा, एन मिथाइल अमीनो इथेन. नाउ इट्स IUPAC नेम विल बी एन मिथाइल इथेनामाइन बेटा, एन मिथाइल इथेनामाइन, क्योंकि जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है दैट इज हैविंग योर 2 कार्बन एटम्स हियर, सो वर्ड रूट इज इथ बेटा, देन प्लस एन, single bond is there between the carbon atoms, and then your amine, then it's so N-methyl ethanamine. Then next is your tertiary amine. So बच्चों tertiary amines क्या रहते हैं, जिनका tertiary amines ऐसे amines रहते हैं जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं बेटा. So general formula of the tertiary amine is R3N. Now बच्चों फंक्शन ग्रुप जो है इसका दैट इज N, और इस N के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एंड देन सेकेंडरी प्रीफिक्स इज N अल्काइल और सेकेंडरी सफिक्स इज अमाइन दैट इज सेम एज दैट ऑफ योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस. नाउ बेटा कॉमन नेम्स हम उस तरह ही लिखते हैं जिस तरह हमने कॉमन नेम्स सेकेंडरी अमाइंस के लिखे बेटा. उसमें क्या करते हैं, हम जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, एंड देन वी एड द वर्ड amine. Or in case of your alkyl groups are same beta, then we use the numerical prefix tri before writing the alkyl groups. And then beta the common name is also written in other way also, जिसमें हम पहले तो कुछ alkyl groups को as a prefix यूज करते हैं बेटा, और एक alkyl group को as a amino alkane लिखते हैं. और बच्चों ये जो larger alkyl group है that will form the part of the alkane. And बच्चों this will be clear when we will take the examples, but we have also done the same case in case of your secondary amines, may be clear to you beta. Now beta जो IUPAC names हैं we just write IUPAC name like N alkyl plus alkanamine. Clear? So N alkyl alkanamine जो है that is the common IUPAC name of the tertiary amines. Now बच्चों nomenclature of the tertiary amines. बेटा जनरल फॉर्मूला जैसे अभी बताया हमने कि that is R3N और suffix is amine, then it's CH3 thrice N बेटा, that is trimethyl amine. Common name is trimethyl amine. और दूसरी तरह से भी इसका कॉमन नेम हम लिख सकते हैं, वो कैसे, N डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप्स को हमने एज अ प्रीफिक्स ले लिया बेटा, और एक को एज अ अल्केन लेना है हमने. सो दिस इज N डाइमिथाइल अमीनो मिथेन. देन इट्स IUPAC नेम इज N डाइमिथाइल मिथेनामाइन, N dimethyl methenamine. Methenamine क्यों? Because there is only one carbon, that is a meth plus ane plus amine beta. Then next is beta CH3 CH2 whole twice beta NCH3. Now here this is a diethyl methyl amine beta. Simply it's a diethyl methyl amine. और दूसरा कॉमन नेम इसका क्या हो सकता है बेटा, दैट इज N मिथाइल अमीनो इथेन. और इसका जो IUPAC नेम रहेगा बेटा दैट इज N मिथाइल इथेनामाइन, क्योंकि एक को एज अ अल्केन लेना हमने, अल्केन के साथ आपका अमाइन सफिक्स लग गया बेटा. सो दिस इज योर N मिथाइल इथेनामाइन. नाउ बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ द नाइट्रोअल्केन्स. जनरल फॉर्मूला जो है नाइट्रोअल्केन्स का दैट इज RNO2. सो फंक्शन ग्रुप इज NO2 बेटा. सो दिस इज N डबल बॉन्ड O एंड N सिंगल बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बेटा. सो नाउ हियर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बेटा, बिकॉज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज गिवन बाय योर दिस नाइट्रोजन टू योर दिस ऑक्सीजन. नाउ दिस मे ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. क्यों? बिकॉज बेटा ये जो आपका बॉन्ड पेयर है बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बेटा दैट इज गिवन बाय दिस नाइट्रोजन बेटा विच इज शेयर्ड बाय दीज 2 एटम्स. नाउ सेकेंडरी सफिक्स जो है दैट इज नाइट्रो. और बच्चों IUPAC नेम जो है नाइट्रो अल्केन्स के दैट कैन बी रिटन लाइक नाइट्रो प्लस अल्केन
that is giving you this nitroalkane. So it means nitro जो है that is taken as the prefix, clear, before the alkane. So this was CH3NO2 beta. So nitro we have to write as a prefix. So this was nitro meth plus ane, that is a nitromethane. Then it's a nitro plus eth plus ane beta, nitroethane. Then this was nitro plus prop plus ane, nitropropane. This was second position पे है बेटा नाइट्रो ग्रुप. So it's a 2-nitrobutane. So these are the IUPAC names of the nitroalkanes. Now बेटा nomenclature of alkyl nitrites. बच्चों जनरल फॉर्मूला जो है आपका नाइट्राइट्स का, दैट इज RON डबल बॉन्ड O, दैट इज RONO. देन फंक्शनल ग्रुप इज योर ON डबल बॉन्ड O. सेकेंडरी सफिक्स इज नाइट्राइट बेटा. और जो कॉमन नेम हम लिखेंगे बेटा कैसे, एल्काइल ग्रुप के साथ सफिक्स नाइट्राइट लगा देंगे एंड द कॉमन नेम विल बी योर एल्काइल नाइट्राइट. एंड रिमेंबर बेटा नाइट्राइट्स के IUPAC नेम्स आर नॉट देयर, सो वी डोंट राइट द IUPAC नेम ऑफ द नाइट्राइट्स. नाउ बच्चों लेट्स टेक सम केसेस ऑफ द एल्काइल नाइट्राइट्स. पहली बात मैंने कही बेटा कि देयर आर द नो IUPAC नेम्स ऑफ द एल्काइल नाइट्रेट्स. सो और इसका जो कॉमन नेम हम लिखते हैं, वी यूज द सफिक्स नाइट्राइट आफ्टर द एल्काइल ग्रुप बेटा, दैट इज एल्काइल नाइट्राइट. सो दिस इज मिथाइल नाइट्राइट बिकॉज वन कार्बन इज देयर. सो मिथ प्लस YL बेटा मिथाइल नाइट्राइट. एंड देन दिस इथाइल नाइट्राइट. एंड देन दिस इज 1 2 3 प्रोपाइल नाइट्राइट बेटा. एंड दिस इज 1 2 3 4 और 2 पोजीशन पे नाइट्राइट है बेटा. सो दिस इज आइसोब्यूटाइल नाइट्राइट. नाउ बच्चों nomenclature of the nitriles. They are commonly written like alkyl cyanides or alkyl nitriles बेटा. और जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N. सो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ बेटा, दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N. और इसको दैट इज साइनो और नाइट्राइल. और सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा इसके लिए, नाइट्राइल. अब बच्चों कॉमन नेम्स क्या रहेंगे, वी विल एड सफिक्स साइनाइड टू द एल्काइल ग्रुप, तो दैट इज एल्काइल साइनाइड. और दूसरी तरह से भी हम इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं बेटा बाय रिप्लेसिंग द इक एसिड बाय O नाइट्राइल ऑफ द एसिड बेटा. फॉर एग्जांपल एस्टिक एसिड है सपोज बेटा, उसका इक एसिड हमने रिमूव किया बेटा, ड्रॉप किया, एंड देन वी हैड एडेड द सफिक्स O नाइट्राइल, देन एस्टिक एसिड प्लस O नाइट्राइल क्या हो जाएगा बेटा, एसिटोनाइट्राइल. देन बेटा in case of your IUPAC name we just add the suffix nitrile to the alkane beta. So beta let's take some cases of the nitriles. So अभी कहा हमने बेटा कि IUPAC नेम जब हम लिखते हैं तो alkane plus nitrile, so alkane के साथ हम nitrile suffix यूज करते हैं, तो आपका कॉमन IUPAC नेम जो हुआ nitriles का दैट इज alkane nitrile. नाउ बच्चों दिस CH3CN, तो इसका जो नेम रहेगा दैट इज मिथाइल साइनाइड. और इसका जो IUPAC नेम रहेगा बेटा, जब हमने IUPAC नेम लिखना है तो इस कार्बन को भी हम काउंट करेंगे बेटा. तो इट्स 1 एंड इट्स 2, तो देयर आर द 2 कार्बन एटम्स, वर्ड रूट फॉर दैट eth प्लस एन प्लस नाइट्राइल बेटा, दैट इज इथेन नाइट्राइल. देन लेट्स टेक नेक्स्ट केस, दिस इज 1 2, क्लियर. सो कॉमन नेम जो हुआ इसका दैट इज इथाइल साइनाइड. और IUPAC नेम क्या हुआ बेटा, प्रोपेन नाइट्राइल. अब क्योंकि IUPAC में तो हमने इस कार्बन को भी काउंट करना है, क्लियर. सो नेक्स्ट इज 1 2 3, दैट इज प्रोपाइल साइनाइड कॉमन नेम. अब IUPAC नेम जो इसका रहेगा बेटा दैट विल बी 1 2 3 4 4 है ना बेटा, दैट इज ब्यूट प्लस एन प्लस नाइट्राइल, दैट इज ब्यूटेन nitrile. Hope students this is clear. Now बच्चों nomenclature of isonitriles. बच्चों they are also said to be isocyanides और carbyl amines. और जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज RNC. और फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा, NC, और N के साथ क्या अटैच्ड है बेटा, एल्काइल ग्रुप. नाउ दे आर ऑल्सो सेड टू बी isocyanide और isonitride.
सो बेटा सेकेंडरी सफिक्स जो रहेगा यहां दैट विल बी ऑफ आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। और बच्चों कॉमन नेम जो है दैट इज एल्काइल प्लस आइसोसाइनाइड, और वो क्या रहेगा आपका एल्काइल, आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल्स। एंड बेटा देयर आर नो IUPAC नेम्स फॉर आइसोसाइनाइड्स और आइसोनाइट्राइल्स। सो लेट्स टेक द सम केसेस ऑफ आइसोनाइट्राइल्स बेटा। सो अभी कहा हमने कि हम सफिक्स यूज करते हैं आइसोनाइट्राइल which is added after the alkyl group just to write the common name beta. So beta let's say this is CH3NC, this is methyl isocyanide or methyl isonitrile. Then beta this is ethyl isocyanide or ethyl isonitrile. Then next is a 1 2 3 propyl isocyanide, and then it's a propyl isonitrile. So bachcho, with this, thank you. Have a nice day. Hope you have enjoyed the today's lecture. Thank you.